Assalamu alaikum, Momina. Thank you so much for joining the session. Walaikum salam. How are you? I'm good. I'm good. Thank you so much for taking out time for this session. Before we proceed to the session, discuss about all the things going around in Pakistan, UAE, outside Pakistan. Tell me about yourself. What you are doing up. What you are going up to. अभी आजकल क्या चल रहा है? How's everything? I'm pretty much sure a lot of people know you on LinkedIn, but just for the audience, आप एक मिनट बता दो क्या चल रहा है? How's everything? Yeah, absolutely. Assalamu alaikum, everybody. I'm Momina. I am a creative director. I'm currently working at Front Matter as a creative director. I'm also a visual designer. I have been in the field for around 9 years now, and I have worked like freelance, in-house, and also in creative agency as I am doing right now at Front Matter. It's been a very interesting journey so far because very early on in my career, I started kind of like working, like during my university days, I started working. So I, and immediately after my graduation, I also jumped into like an in house design team. So I think for me, very early on, my processes are very like, fleshed out, very clear. And that has really helped me discipline myself as well in a lot of things. To date, I use those pointers in my personal and professional journey and like all the design projects that I do. Apart from this, I also enjoy a lot of like passion projects. Just working apart from just doing freelance, I do a lot of like smaller projects that are creative. So just going back to like manual mediums, small paintings, discovering like those things. And then um, I think some of you might be familiar that I'm really into Urdu typography. I started this as a passion project back in 2016. And it's been like something that I continuously go back to even when I'm stuck. It's something that, like a cure for it. So I really enjoy it. And I like that, it in a way I'm like putting Urdu forward, doing a little something for our own language. So that's one major aspect. Thank you so much, Momina, for sharing this overall detailed introduction. Moving forward, the first thing that I wanted to discuss is let's dig into the point जहाँ पे ये समझा जाता है कि till the date designer is not a white collar job in Pakistan, to be very honest. ठीक है, whatever you are, still what I see is in fashion designing, interior designing, it's a bit different. आप interior designer हो, ठीक है, आपकी इज्जत होती है. आप fashion designer हो, आपकी इज्जत होती है. Why don't we have that same standards for graphic design? Okay, why always a graphic designer is being compared with so-called Pakistan चौक का designer? And I'm not saying कि पाकिस्तान चौक में अच्छे डिजाइनर नहीं होते हैं, क्या चीज़ है, ठीक है. 4 साल की डिग्री एक फैशन डिजाइनर भी पढ़ रहा है, 4 साल की डिग्री एक ग्राफिक डिजाइनर भी पढ़ रहा है. क्यों दोनों अपने आप को उस तरीके से मार्केट नहीं कर पा रहे जहाँ पे फैशन डिजाइनर अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से व्हाइट कॉलर जॉब में मार्केट कर पा रहा है पाकिस्तान में. ग्राफिक डिजाइनर, आई एम प्रीटी मच श्योर, अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची, लाहौर या इस्लामाबाद की बात करूँ तो एक पत्थर उठाएंगे उसके नीचे 4 डिजाइनर मिलेंगे. हाउ डू यू डिफरेंशिएट योरसेल्फ? हाउ डू यू मेक योरसेल्फ एज वर्दी एज फैशन डिजाइनर, डॉक्टर्स और एनी अदर फील्ड? क्योंकि अगर देखा जाए तो देयर इज़ अ टाइम जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता था कि डॉक्टर बनना इज़ एक्सपेंसिव, बट नाउअडेज़ आर्ट स्कूल इज़ सिमिलर टू दैट. आपकी आपकी फ़ीस, आपकी Yeah. सारे जितने भी एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती हैं, वो मिला-मिलू के आप उसी पे वेज पर या उसी स्केल पर आ जाते हो जहाँ पे आपका डॉक्टर की डिग्री या ये सारी चीज़ें मैच हो रही होती हैं. सो व्हाई? मेरा पहला सवाल है व्हाई ग्राफिक डिज़ाइनर व्हाइट कॉलर जॉब नहीं बन पा रही? और सेकंड, कैसे आप इसको ग्रो कर सकते हो? मतलब अगर आप इस फ़ील्ड में आ गए हो, अब खुदा ना ख़ास्ता आपको बद्दुआ मिल गई है, आप डिज़ाइनर बन गए हैं, आपको 9 टू 5 जॉब नहीं मिल रही, आपको 24 घंटे काम करना पड़ रहा है, तो आप इसको किस तरीके से अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाओगे? Yeah, I think there are two things to this. I think the foremost thing is when we kind of like stepped into the professional world, right? So I remember our professor telling us this, there's a skilled person and there's a creative person. So very early on, distinguish yourself in the field by kind of like making these marks. Are you just like skilled at a certain software, or are you a creative person who can generate ideas? So I think that was something that really stuck with me. So very early on, I knew, okay, if I am a creative person, I need to show it through more than like whatever project I'm doing at my work day to day. Another aspect of this is, yes, I completely agree that, graphic design is
or design in general is a very expensive degree. I mean, like, अगर आप शुरू से देखें all of the material that you're buying, you're kind of like working towards like foundational skills. उसके बाद आप अपने systems पे आ जाते हो. The softwares are expensive. Getting a good system is expensive. But I feel like a lot of people take this really lightly कि इतनी आसान जॉब है, आपने बस लैपटॉप उठाना है और लैपटॉप पे काम करना है. The like you will hear this so often कि random people are like मुझे डिज़ाइन सिखा दो ताकि मैं डिज़ाइन मैं डिज़ाइनर बन जाऊँ बिकॉज़ पीपल थिंक दैट इट्स एक्सेप्टेबल एंड इट्स नॉट रॉन्ग एंड बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज़ लाइक अ सर्टेन क्रिएटिव स्किल बट आई थिंक कि उस चीज़ में बहुत सारे लोग ये चीज़ डिसरिगार्ड कर देते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग टू बी एट दैट लेवल. There's a lot of training and dedication required to do that, right? Even like people who are sitting in print shops and they're like doing things really fast, they have also gained that skill over the period of time, right? ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको 2 दिन फिग्मा का एक लेसन दूँगी and then you are like a pro at it. There's a lot of like effort that goes on from your end for it. And I think like that speaks to like the larger aspect of your question. Ki how do you kind of like present, make your profession as part of like, your life and you basically show it like that. Ki you have to work on your personal brand. So yeah, that's really, really important. With design because up to accessibility itni zyada hai, right? Every person has a phone and everybody knows कि जो चीज़ डिज़ाइन जो पोस्टर आ रहे हैं उनके सामने, जो पोस्ट आ रही है, एनी एडिटोरियल पीस, इट्स ऑल डिज़ाइन, राइट? सो अब डिज़ाइन की उस तरह नो हाउ है जो शायद लाइक 4 साल पहले, 5 साल पहले उस तरह नहीं थी. सो what you need to work on is your personal brand. You need to make sure that people know the value of your design. It's very common in like a lot of areas, and this is not just in Pakistan. I have seen it working in like international firms as well with international clients. You know, they will disregard your opinions really quickly because somehow somebody is doing that and they think that's correct. But her cheese can be followed up with rationale. If somebody is trusting you with a project, if they're saying, we need a logo design for our brand and we think that you are the right person to do it. And then in the second round of revision, वो आके कहते हैं कि नहीं हम लोग इसको इस तरह का कर देते हैं. So you have to justify on things on your end as well. We are not you don't have to be a robot. We are not robots that are going to do like create this for that. It's you need to come up and back up your design opinions with solid rationale. I think that's so important that that's so much context for the other person who's giving you the work. And then they trust your opinions as well because they know that it's coming from an area where you have like spent a lot of time learning about these things. और हर अच्छे डिजाइन डिसीजन का rationale होता है. It's never कि अच्छा I mean like in a lot of cases we know that there are set standards, like two colors will go well together. सही है. So you don't have to write like 3 intensive paragraphs about why green and purple work together. But like other things कि आप किस तरह की typography use कर रहे हो, how it's speaking to the brand, things like that. You're presenting rationale that builds your confidence and builds trust between you and your client. So I think like that's really important and ultimately speaks to your personal brand. Second pointer that I wanted to discuss is growth of a designer. ठीक है? Not only growth of a designer, let's take it in that way कि लोगों को ऐसा लगता है कि उसका डिज़ाइन अच्छा है, तो वो लीड हो चुका है या उसका डिज़ाइन अच्छा है, तो वो हेड बन चुका है, ठीक है? आई हैव फ्यू मिथ्स वे बिफोर 4 साल पहले, 5 साल पहले जहाँ मैं देखता था यार वो बंदा जो हेड ऑफ डिज़ाइन कैसे बन गया है, ठीक है? Then I realized after working for the industry for more than 6, 7 years कि it's not about the tool. Your tool, your expertise will only take you to one level जहाँ पर आप जाके वो चीज़ अच्छे से बना सकते हैं. बट इफ़ यू वांटेड टू ग्रो जैसे अगर मैं बात करता हूँ मार्केटर्स की, ठीक है? आपने बीबीए कर लिया, उन्होंने उन्होंने आपने एडवर्टाइज़मेंट या जो भी डिज़ाइन डिग्री करनी थी आपने कर ली, उन्होंने बीबीए कर लिया. व्हाई दे आर ग्रोइंग? बिकॉज़ आपका टूल आपको एक हद तक लेके जाता है, उसके बाद आपको अपनी कम्युनिकेशंस को बेहतर करना होता है. आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, वो कर क्यों रहे हैं और करवानी क्यों है, ठीक है? इसके अंदर एक और पॉइंट होता है कि जहाँ पे अभी आपने बोला कि
येस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब आपके पास चेंजेज़ आएँ तो आप उसको बैक कर सको। लेकिन आपको ये भी समझना होता है आप किस मार्केट का हिस्सा और किस मार्केट में किस तरीके का काम होता है, ठीक है? अच्छा। बिफोर आई मूव टू द पॉइंट कि यार सबको ऐसा लगता है ग्रोथ का मतलब ये है कि आप डिज़ाइनर हैं, 2 साल बाद सीनियर डिज़ाइनर हो जाएँगे, 2 साल बाद जूनियर डिज़ाइनर हो जाएँगे, 2 साल बाद लीड हो जाएँगे, 2 साल बाद कुछ और हो जाएँगे। दिस इज़ नॉट हाउ ग्रोथ वर्क्स। पाकिस्तान के अंदर मैं अगर 100 में से 70 या 80 प्रोफाइल्स देखूँगा, हर बंदा आर्ट डायरेक्टर है, हर बंदा सीनियर डिज़ाइनर है, हर बंदा कोई ना कोई चीज़ है, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ कोई चीज़ फ़ॉलो नहीं हो रही ना, कि अगर एटलीस्ट कितना साल लगते हैं, मतलब मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, मैं लोगों से पूछता हूँ कितने साल लगते हैं जूनियर डिज़ाइनर को सीनियर डिज़ाइनर बनने में? और कैसे आप ये सोच पा रहे हो? मतलब कैसे मैं किसी को कह सकता हूँ कि मैं सीनियर हूँ, आप जूनियर हैं, ठीक है? क्योंकि डिज़ाइन एक ऐसी वाहिद फ़ील्ड है कि कल को अगर एक और नया टूल आएगा, एक बंदा वो टूल जानता है और एक बंदा वो टूल नहीं जानता, तो मैं सीनियर कैसे हुआ? फिर तो मैं बराबर हूँ, तो इट मीन्स कि डिज़ाइन की फ़ील्ड के अंदर देयर इज़ नो जूनियर एंड सीनियर, देयर इज़ लाइक आपके पास ये आपके पास आइडिया को एक्सप्लोर करने की अपॉर्च्युनिटीज़ होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताओ कि मोमिना के हिसाब से ग्रोथ क्या है? ग्रोथ ये है कि भाई ठीक है, मेरे नाम के आगे सीनियर, हेड एक्स-वाई-ज़ेड जो भी पोज़ीशन होती है वो लगती जाए, ठीक है? या मेरी डिज़ाइन के मेरी सीनियॉरिटी के हिसाब से होनी चाहिए कि जब मैं कोई डेज़िग्नेशन पे हूँ, तो जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, वो बता सकें कि यार ये इस तरीके से, ठीक है? इससे एक और चीज़ कनेक्ट होती है, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग फॉर एन एजेंसी एंड वर्किंग फॉर एन एमएनसी, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है एमएनसी आपको बेसिकली वो नाल लगा के बना बना देती है कि ठीक है, आप घोड़ा होता हो और आप एक ही चीज़ कर रहे हो तो बट आप वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो तो। ठीक है? इन एजेंसीज़ व्हाट आई सी इज़ कि हो सकता है आप डिज़ाइनर भी हो, आप कंटेंट भी देख रहे हो, आप ये सारी चीज़ें भी कर रहे हो। एमएनसीज़ के अंदर वो चीज़ें बहुत प्रिसाइज़ होती हैं, इसलिए आपको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस पता चलती है, कि ठीक है भाई जो मैंने डिज़ाइन बनाना है, वहाँ पे एसएलएज़ हैं, वहाँ पे एसओपीज़ हैं, वो मुझे फॉलो करनी है। ठीक है? यू जस्ट डोंट ग्रो एज़ अ डायरेक्टर और एज़ अ आर्ट डायरेक्टर जस्ट बाय मेकिंग गुड डिज़ाइन। ठीक है? लोगों को ये चीज़ दिमाग से निकालनी चाहिए कि डिज़ाइन अच्छा या बुरा पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है? हो सकता है कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगे, हो सकता है एंड यूज़र के लिए वो चीज़ अच्छी ना हो, या एक चीज़ आपको बहुत बुरी लगे, हो सकता है एंड यूज़र के लिए वो चीज़ बहुत अच्छी हो। तो ग्रोथ की असली डेफिनिशन आपके हिसाब से है क्या? I think to the point that you raised, MNCs and like agencies work on a very different format. That is very true. I think for myself, my first job was at Keep Tracking Flash Motive. So very early on, I came into like a very structured way of doing things. Um, I think in a lot of places within Pakistan, there is no job architecture as such. And जो एक हायरार्की सिस्टम है ना, वो वही लैडर वाली थिंकिंग है आपकी कि अच्छा सीनियर और फिर उसके ऊपर सो पीपल आर जस्ट लाइक लूकिंग फॉर क्विक प्रमोशंस एवरी सिंगल ईयर दैट्स नॉट पॉसिबल एंड देयर इज नॉट लाइक देयर मतलब उनकी सेट एक्सपेक्टेशंस नहीं लेनी इस तरह कि the managers are not setting expectations for them कि like to get to a senior role this is what you need to do so लोगों की expectation ये होती है कि it's like a time thing कि I'll spend 2 years at the company उसके बाद मैं senior हो जाऊंगा that is obviously not the case. And then I think like another point to this is that everybody thinks that growth sort of vertical होती है. And like you said, there's a lot of, it's very well rounded. There's a lot of other aspects to growth. So people need to focus on this as well. कि a lot of roles ask for a horizontal growth ताकि you get to that vertical growth, right? That is very important to understand. For me, I think like really early on, I knew what areas I wanted to grow in. So when I joined KT, for instance, Keep Trucking, तो मेरा बहुत ज़्यादा ये सीन था कि उस टाइम पे I was not interested in web design at all, and it was like something that I was not fond of back in university as well. We did it for like 2 semesters or something, and I was like, that is just not my forte. Um, but like when I started working, like I think 6 months into KT, I kind of like saw my lead doing a lot of like web design work, and I actually went up to her and I told her that this is something I want to learn. So it's a lot about like taking the initiative to grow your skill, like you said कि senior junior हम हर level पे होते हैं, but आपका skill set जो है ना, it speaks a lot to you and how you communicate it. You need to let your managers know if you want to learn something. So for me, it was like taking initiative for myself कि I want to learn like
increase my skill. So I will go up to my manager and told her, okay, this is something that I want to learn. She gave me project. She started my training on it. And, like eventually I fell in love with web design. It's one of my strongest skills now. So I feel really proud कि वो that one step I had to take. And I've done that like continuously throughout my profession. Um, एक चीज़ I think आपको kind of like you need to like stop putting yourself on a pedestal, even if you are on a senior level. I do this day to day, like working in an agency right now. We have like multiple clients. We have like 12 different clients. We have different creative directors taking care of like a sets of clients, right? So, जो मेरे counterpart के clients हैं, I'm not obviously not that familiar with them, right? So if we have like somebody or going out, we have a creative director who's out of office right now, and I don't know her client that well, then I lean on the designers who are actually doing the work. I go and ask them, what would be the right thing. Do not make your seniority something a part of your ego, because that's going to bring you down. Trust people, make it a conversation. I think that's really important, and that allows you to grow even in a senior role. क्योंकि अक्सर senior roles जो है ना वो बहुत silos में होते हैं. You are communicating with everyone, and you're not getting that visibility क्योंकि आप you're not in the trenches doing the actual design work. A lot of it is management, right? So you have to kind of like trust your juniors. You have to trust your people. You have to talk to them, and just not just about work, not just about design, but also a lot of it is about your other skills, right? कि आपकी अपनी communication कहाँ जा कैसी जा रही है? Can you help them with something? Can you improve processes? So it's like it should not be like a one-way conversation, and उसका इनिशिएटिव भी आपने खुद ही लेना है. That's something that I've learned like and picked up कि जो and seen as well like in managerial roles I've seen this कि people who take initiative themselves, they grow faster and they grow further as well. So I think like that's really important throughout. Like the answer that you shared is it's good. Another thing that I see is मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि यार हमारी ग्रोथ नहीं हो रही। फिर मैं उनसे पूछता हूँ आप करते क्या हैं? यार हम इस ब्रांड पे काम करते हैं। गुड। हम इस ब्रांड पे काम करते हैं। गुड। Do you think only making social media posts, only making banners, only making these things will know how to grow? Because if you don't know the real perspective of कि आप जो चीज़ बना रहे हो, वो कहाँ पे यूज़ होगी, उसका पर्पस क्या है, उस पे कितना पैसा लगा हुआ है, because these things are important. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू नो कि जो आप क्रिएटिव पीस बना रहे हो, उसकी उसकी एड्स के ऊपर 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपए लगने हैं, तो आप उसको उतना सीरियस ले सकोगे। अगर आप एक सोशल मीडिया की पोस्ट को और एक कमर्शियल में कोई चीज़ डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, अगर आप एक सोशल मीडिया की पोस्ट में और एक बिलबोर्ड के अंदर कोई चीज़ कुछ डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि आपके पास कोई ब्रिज सिस्टम नहीं है, आप में इतने गट्स नहीं है कि आप थोड़ा-सा उठ के मार्केटिंग के पास जाएँ, उस इंडिविजुअल के पास जाएँ, जिससे पूछें कि मुझे बताएँगे कि हम ये किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। एजेंसी में हाँ, ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि आपको एनवायरनमेंट थोड़ा-सा चिल वाला होता है, आपको कोई मसला नहीं हो रहा होता, आप पूछ रहे होते हैं एक-दूसरे से। बट इट्स ऑल्सो लाइक अ टू वे ट्रैक, ठीक है? एजेंसियाँ भी कोई इतनी अच्छी नहीं है पाकिस्तान में, या तो बहुत अच्छी हैं और जो अच्छी हैं भी, ठीक है, वो बस दिखने में अच्छी हैं। इंटरनली वहाँ पे भी एक-दूसरे में सबको एक-दूसरे से मसले हैं, ठीक है? क्यों? एट द एंड ऑफ द डे हर किसी को इसके एक-दूसरे से मसला होता है क्योंकि जिसके लिए वो काम कर रहे हैं वो बेसिकली मेन प्रॉब्लम है, ठीक है? क समटाइम्स द क्लाइंट इज़ द प्रॉब्लम और इट्स अ ह्यूमन थिंग, आप किसी न किसी पे गुस्सा कभी न कभी तो उतारोगे। बट एजेंसी में फिर भी ये होता है कि आपको पता होता है, ठीक है? एक जूनियर को, ठीक है, ये सिखाया जा रहा है कि आपको अच्छा डिज़ाइन कैसे करना है। उसको ये भी तो बताया जाए कि उसका पर्पस क्या है? वो डिज़ाइन सिस्टम का कौन-सा हिस्सा है? अगर वो पोस्ट बना रहे हैं तो वो किस कैम्पेन का है? उसमें मैसेजिंग क्या हो रही है? ठीक है? मतलब ये वैसी बात है कि अगर अकाउंट मैनेजर एक डिज़ाइनर को आके बगैर ब्रीफ के सिर्फ़ कंटेंट दे दे और कहे कि आप बना दो। ठीक है? सो यू डोंट रिलाई ऑन दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एक ब्रिज बनना होता है, आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट और आपके डिज़ाइन के बीच में क्या फ़ायदा है, दोनों मिलेंगी तो वो किस तरीके से क्लाइंट का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, ठीक है? तो वो गैप कैसे बनाते हैं, ठीक है? आई एम प्रीटी मच श्योर कि लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि क्रिएटिव क्रिएटिव डायरेक्टर करता क्या है? मुझे ऐसा लगता है जितना तेज़ी से आप ग्रो करते हो, उतना आपके पास करने को काम कम होता है, लेकिन आपके पास जो ह्यूमन पावर होती है, वो बढ़ जाती है। आपको देखना होता है कि मुझे इस बंदे को भी खुश रखना है, मुझे इस बंदे को भी खुश रखना है, इन दोनों की कम्युनिकेशन भी अच्छे तरीके से होनी चाहिए और जो चीज़ जहाँ डिलीवर होनी चाहिए, वहाँ डिलीवर हो, ठीक है?
और उसके ऑब्वियस सी बात है कि वो आप और पूरे साल में बहुत काफ़ी सालों की मेहनत से आपको पता होता है कि ब्रांड किस तरीके से बनता है, क्या सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है? उन लोगों को किस तरीके से आप एक ब्रिज कंप्लीट करते हो? मतलब क्या सिर्फ़ ये मार्केटर्स का काम है? क्योंकि मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर्स को देखा है, उनका काम इतना होता है कि वो सिर्फ़ जाते हैं और डिज़ाइन करते हैं। What I personally see, I have friends who are good in design, not good in the salary thing because they are just doing design. ठीक है? आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, वो प्रॉब्लम बेसिकली थी क्या? वो जनरेट कहाँ से हुई थी? उसका बैक स्टोरी क्या है? ताकि आपको पता चले आपको मैसेजिंग ऐसे कैसे करनी है। मैं लोगों को देखता हूँ, डिज़ाइन बनाते हैं, सबमिट कर देते हैं। कोई से नहीं रखते, कुछ नहीं पूछने की कोशिश करते कि भाई क्यों है? ब्रीफ आती है और ब्रीफ के साथ आप पूछो भाई कि जो ब्रीफ आई है, ये ब्रीफ मुझे सही नहीं लग रही है, ये ब्रीफ सही लग रही है तो मुझे ये बताइए यूज़ कहाँ पे होगा? क्योंकि मेरे हिसाब से अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक मार्केटर के पास एक रिक्वेस्ट आती है, वो कहता है कि भाई मुझे बिलबोर्ड पे एक डिज़ाइन बनवाना है, ठीक है? मेबी वो कम्युनिकेट कर रहा है, उसको एक डिज़ाइन मिलता है, मतलब उसको एक साइज़ मिलता है, वो साइज़ आपको देता है। अगर आपको वो साइज़ सही नहीं लग रहा या जो मैसेजिंग उस पे जा रही है आपको सही नहीं लग रही, तो आप पूछ सकते हो। यहाँ पे लोग पूछते नहीं है, तो वो गैप ही खत्म नहीं होता। सो हाउ डू वी ब्रिज दैट अ, गैप बिटवीन 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, ठीक है? डिज़ाइन डिपार्टमेंट या क्रिएटिव डिपार्टमेंट को, ठीक है, हमेशा एक तरफ ही रखा जाता है। हाँ, भई हम चीज़ें सोच लेंगे, जब एग्ज़ीक्यूट करनी होगी हम दे देंगे। व्हाई? व्हाई दे आर नॉट द फर्स्ट पार्ट कि अगर आप कोई कमर्शियल बना रहे हो। व्हेन आई वाज़ इन दराज़ वी हैव अ टीम, हमारी पूरी डिज़ाइन टीम बैठती थी। अगर कोई कमर्शियल बन रहा है, क्रिएटिव टीम बैठती थी, वो आके अपने आइडियाज़ बताते थे, हम आके अपनी चीज़ें बताते थे। ठीक है? दिस इज़ द एक्सरसाइज़ दैट आई डिड इन माय एक्सपीरियंस इन दरार एंड अदर पीपीएम्स एंड एवरीथिंग, ठीक है? और अब मैं देख रहा हूँ प्रोडक्शन हाउसेज़ ये कह रहे होते हैं पीपीएम्स ज़रूरी है क्योंकि आपको पता तो होना चाहिए जो आप सोच रहे हो उसकी एग्ज़ीक्यूशन एंड आल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कि एक चीज़ 10 दिन में बनती है और एक चीज़ 1 दिन में बनती है। हमारे पास मार्केटिंग की तरफ से ब्रीफ आती है कि मिशन इम्पॉसिबल जैसी कोई चीज़ बना दो और उनको ऐसा लगता है कि 2 दिन में वो चीज़ बन जाएगी। ठीक है? Yeah, तो always. यू नीड टू कम अप विद जब तक आप बोल क्योंकि यहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है, आप ज़्यादा काम करोगे, ठीक है, आपको अच्छा समझा जाएगा। नहीं, आप ज़्यादा काम करते हो तो आपको और ज़्यादा काम दिया जाएगा, ठीक है? आपको अब ये वही वाली बात है ना, लोग मुझसे पूछते हैं कि यार एट सर्टेन पॉइंट अभी बहुत मर्तबा ऐसा हुआ मेरे एक्सपीरियंस में कि हमें एक छोटी-सी चीज़ एडिट करनी होती है और हमारी टीम में अगर डिज़ाइनर है या मोशन डिज़ाइनर है, वो कहते हैं बन गई 2 मिनट में। मैं कहता हूँ यार टेक अ डीप Mm, ब्रेथ, चीज़ को देखो और फिर आराम से भेजो। अगर आप बहुत जल्दी ये चीज़ समझ आप मतलब कभी-कभार ये भी समझना होता है कि ओवर एफिशिएंट बनने में कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? क्योंकि in real world no one is your friend, no one is there, only people are there to do their work and just go home, ठीक है? आप लोगों से जब तक नहीं पूछोगे कोई भी आपको आके बताने नहीं वाला, ठीक है? mm. कि भाई वो काम का मेन पर्पस क्या है। हाउ डू यू सी एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, अब मुझे बताएं कि आप उस ब्रिज को कम कैसे करते हो। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, आप हो ऐसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो बेसिकली हर्डल्स रखते हैं, ठीक है? कि भाई एक दिन बैठे हैं अपनी टीम से पूछते हैं कि टीम को क्या मसला है, ठीक है? टीम को सिर्फ़ कंप्यूटर के अंदर रैम बढ़ा देना या स्क्रीन अच्छी चाहिए ये मसला नहीं हो सकता, ठीक है? तो हाउ डू यू ब्रिज दैट गैप किस तरीके से आप क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके से ग्रो कर रहा हूँ या जिस तरीके से लोग ग्रो करते हैं, जब आप सीनियर पोज़ीशन पे जाते हैं तो आपकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपने जूनियर वालों को ग्रो कर सकें क्योंकि अगर आप उनको Yeah. ग्रो नहीं कर सकते, यू आर नॉट अ गुड लीड। हाउ डू यू डू दैट? That is a very good question. I think like just in terms of projects, I would say कि I completely agree कि ये questioning वाला phase हमारा आता नहीं है. I've seen this with so many juniors as well कि they will not ask, they will not give you a design rationale, which is super important. So we do it like specifically I do it by two ways. एक तो when I am passing over projects, just in terms of our process at Fun Matter, we have a scoping phase. सही है? So which means that the creative director will look at the brief, they will go through everything, and they will ensure that we have everything to get started. Unless until we have everything to get started, we won't start. Basic, it's an urgent request. So that's one thing.
The second thing is that we make sure that all of that context is provided to the designer. So yeah, so we'll either set up a call with them, we'll send them a detailed message, or we'll send them a voice note. Anything that gets the entire communication a lot. We- I know a creative director, my counterpart, who makes like entire Loom videos, detailed Loom videos that designers can go back to, and like, just for product context, everything, so that it's at their fingertips. I think, yeah, as a senior, it's your responsibility to provide all of that context, all of the value that your designer will actually like put into the design, right? If they're thinking about the value, then they should be able to give you like a good design. We also encourage like a design, like a creative phase. We want like, like tell them what to do. हम लोग exactly उनको नहीं guide करते. We give them like a a day or hours depending on what the task is to actually, go and deal with it first. And then we kind of like huddle with them, and then we get together and, give them feedback. अच्छा, ये करें. I've seen this like early on in my career with my own like mentor as well, that, do whatever you want, just like, go far and out, and then kind of like rein yourself back in, obviously dependent on time. But that's one thing. And then second thing is like encouraging your designers to give that design rationale. कि अक्सर आपके designers वही के, they'll just share the design with you without any rationale. So you have to like ask them, you have to put them in a position of asking, कि, of answering, sorry, you have to put them in a position of answering कि why they took that decision. I think that's really important. And again, as a senior, that's your job. And as a junior, if your senior is not providing you context, if they're not providing you with like enough feedback, it's your right to have that. So I would encourage like anybody in that position to go and ask for it. Okay, what's the value of this? Yeah, 2 weeks after that project, go and ask your creative director, your marketing person, okay, we did that project event ki hum logon ne collaterals banaye the. How was the response? What could we do better? We have done this with majority of our clients where we go back to them after like their conference, etc., and we ask them, okay, how did the things perform? What could have be done better? So troubleshooting also really helps, either on like a very personal one-to-one with your designer, or like even with larger clients, so that you can cater to those needs and think along those lines in the next project. So that's one thing. And I think secondly, just in terms of growth, what we do personally, and I've seen this like throughout my career, is weekly one-on-ones with your managers that talk about growth, like areas that you can grow in. So for instance, if I am a designer, I'm like a graphic designer who's doing like illustrations and social posts. As a manager, I need to ask, okay, what are the other areas that you want to grow in? And I should be giving them opportunities to grow in those areas as well. Because you don't want your designers on a one-way track, right? You want them to grow into other skills as well that will offset their level. So that is really important. And again, like this is something that if your manager is not doing that, if your creative director is not doing that, please take initiative, because it's your career, it's your make or break, right? So you have to take initiative. And like you said, ki, a lot of people just give like their very best over efficient at job. Give your best at the job. Nobody's saying don't give your best at the job, but don't make your job your life. Your life is separate from your job. Enjoy like other things. If you enjoy design, like enjoy like spend some time creating something for yourself. And I ensure you, okay, working on like something work for yourself, something random that strikes your fancy will actually make you more creative. आपको actually वो आप feel करते हो, okay, when I'm working on like side projects, when I have like when I know, okay, I'm giving 2 hours to banana painting, or I'm like creating a poster or something, that actually like I feel it that it makes me more creative. It makes me want to, like एक जनरल आपकी absorption level होता है when you are like looking at content, you're scrolling through social media, you're looking at like all of these trends, patterns. Like I said, everything is at our fingertips now, right? So it's very important that all of that content we are taking in, because it, as designers, this is our food, right? So वो चीज़ you also need an outlet. Often in in-house teams and also in agencies, हम लोग बहुत
डेडिकेटेड काम कर रहे होते हैं. वी आर डूइंग व्हाट वी आर आस्क्ड फॉर. सो इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस टू लेट आवर क्रिएटिविटी फ्लो, एंड दैट helps kind of like streamline things. It helps you try new things. It helps you like kind of like expand your boundaries as well. And then you can always take those things and go back to your design, your creative director, and say, okay, I was enjoying that thing. Can I kind of like jump into similar projects at work? So, it's like, it's never कि आपने इतना ही करना है. You can do more, but you can like think about it more mindfully कि how can you do more by expanding your skills as well. Very well explained. That comes to my another point is they're like myths. मुझे बताइएगा ये myth सही है या नहीं. ठीक है. Hmm. Expensive PCs, good design. Um, a 4-month course can make you a designer. Or tools is basically creativity. Okay, one at a time. Expensive PCs can make you good designers. No, but it can definitely make you more efficient because if you have like a good PC, it's definitely not going to help your creative life. इफ यू डोंट हैव द स्किल, आप एक बहुत अच्छे मैक पे बैठ के भी शायद उतना अच्छा पोस्टर ना बना सकें. बट व्हाट लाइक अ गुड मैक इज गोइंग टू डू इज कि इट्स गोइंग टू स्पीड अप योर वर्क प्रोसेस. सो दैट्स गोइंग टू हेल्प यू लाइक क्रिएट मोर. इट्स मोर एफिशिएंट. जब हम लोग गर्मी में बैठे होते हैं, हमारे पीसीस लैग कर रहे होते हैं, यू विल सी द वैल्यू ऑफ लाइक अ गुड सिस्टम ओवर देयर. सो You just to add on, please tell me, क्या आपने अपनी डिज़ाइन जर्नी मैकबुक से स्टार्ट करी थी, बहुत महँगे वाले, या यू स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी, क्योंकि ये सबसे पहला सवाल होता है, आप ग्रो करते हैं, लोग आपके पास आते हैं, लोग बोलते हैं, "वाओ यार, यू हैव एन M4 मैकबुक प्रो और मैकबुक मैक्स, आपके पास एप्पल डिस्प्ले और आपके पास आईफ़ोन है, आपके पास आईपैड है और फलाना है, धमाका है।" व्हाट वाज़ योर फर्स्ट सिस्टम यू स्टार्टेड ऑन? माय फर्स्ट सिस्टम वाज वो शहबाज शरीफ वाले लैपटॉप. That was my first तो ये system चीज़ that तो had ये तो that चीज़ all of my पर software. दैट्स फॉर क्लियर कि शहबाज शरीफ के लैपटॉप पे डिज़ाइनर बन सकते हैं। Yeah, ठीक है। definitely. सेकंड सेकंड मिथ, एक 4 महीने का कोर्स, एंड यू नो व्हाट आई एम सेइंग, वो जो मिथ चल रही है, 4 महीने के कोर्स से आप डिज़ाइनर बन जाते हैं। दिस इज़ मिथ और रियल? You can get started, but there's graphic design, illustration, web design. It's a journey. You get training over time. It depends like on how many hours. अगर आप 4 महीने के वो पूरे hours count करें and you are putting all of those in, then yes, maybe you can. But अगर आप वो 4 महीनों में दिन में 2 घंटे ही लगा रहे हैं, तो you probably won't. Like, I don't know if you've read this, but um, there's this thing, right? If you do something for 10,000 hours, then you become an expert at it. And that's because कि आप, and it doesn't matter कि आप कितने time frame में लगा रहे हैं. It's about that training that I spoke about earlier कि अगर आप उतनी effort डाल रहे हैं, only then you'll get the results. आप 4 महीने अगर सिर्फ scroll ही कर रहे हैं या आप सिर्फ rectangle ही खींच रहे हैं, तो उसमें you will obviously not become a designer. So it depends on how you're using those 4 months. क्या आप अब 2 घंटे का कोर्स करने के बाद are you like attempting your own thing? Are you reading up on that? That would make a huge difference. तीसरा मिथ, टूल्स इज़ क्रिएटिविटी। अगर आपको टूल्स चलाने आते हैं तो बहुत अच्छे डिज़ाइनर होता है। Tools is not creativity. Tools, again, it's the same thing with this system, right? Tools are there to help you speed up, to create you, make you more efficient. Abhi, like there are several tools across the market. Adobe के सारे tools के लिए वो हैं, like duplicates हैं, या there's like other software that do the same thing. There are so many tools. आप किसी भी tool पे उठा के illustration कर सकते हो. आप Figma पे illustration कर सकते हो, आप Illustrator पे, आप Procreate पे कर सकते हो, आप Photoshop पे कर सकते हो. There's so many like apps that are on your like smartphone जिन पे आप illustration कर सकते हो. So tools are not creativity. Tools are just an aid to your creativity. ठीक हो गया, तो these myths are done over here. Now the second thing that I wanted to discuss, in your starting of your introduction, you said कि you like to work on passion projects. Um, I was not happy to know कि यार a lot of students don't know what is passion projects. They don't have an idea कि passion projects होते क्यों हैं. Students, newly graduate students come to me and they're like,
हमारे पास तो कोई पोर्टफोलियो नहीं है, हमने किसी ब्रांड पे काम नहीं करा, तो हम क्या डालें? प्रोजेक्ट मतलब हम क्या दिखाएँ? देन व्हेन आई से कि डू यू हैव पैशन प्रोजेक्ट्स? सो दे वर लाइक कि हमें पता ही नहीं पैशन प्रोजेक्ट्स क्या होता है। ठीक है। व्हाट इज़ पैशन प्रोजेक्ट्स? हाउ डू दे हेल्प यू टू ग्रो? ठीक है। एंड इज़ इट लाइक कि बस पैशन प्रोजेक्ट सिर्फ़ तब तक ज़रूरी है जब तक आपको जॉब नहीं मिलती? यही 3 सवाल हैं। So what is passion project? Passion project is something that you are doing, like you are specifically taking time out for, and you're doing them outside of your like other design tasks. अगर आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट करें दैट इज़ नॉट योर पैशन प्रोजेक्ट। अगर आप अपने ऑफ़िस का काम आफ्टर आवर्स करें दैट्स नॉट योर पैशन प्रोजेक्ट। योर पैशन प्रोजेक्ट इज़ समथिंग लाइक you come up, you find like a problem and then you're coming up with a solution. It could be as simple as, मैं illustrations बना रही हूँ for like stories that I read बचपन में। That's one passion project. For me it was like Urdu typography. I noticed a problem कि उर्दू के fonts नहीं हैं because I used to be like really fond of fonts. Fonts. Still am. Typography is a big thing Fond for of me. fonts. Yeah. So I noticed कि उर्दू के कोई fonts नहीं है and it's not because like I'm a big Urdu reader या मैं बहुत कोई उर्दू बहुत ज़्यादा like consume करती हूँ. It's not the case. It's just something I noticed and I started working towards it. So it doesn't even have to be something that कोई और उस पे काम नहीं कर रहा. It's not. It's just something that fuels you, right? So and it doesn't have to be digital either. It doesn't have to be कि अच्छा मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं सारा काम डिजिटली करता हूँ, तो मेरा कोई मैनुअल पैशन प्रोजेक्ट नहीं, ऐसा नहीं है। So passion projects are something that's fueling your creativity, that encourage you to kind of like stay creative and something that you can go back to, when you're stuck, आप रेगुलर अपने काम कर रहे होते हो, ऑफ़िस का काम कर रहे होते हो एंड यू आर वेरी फ़ैमिलियर, एवरीबॉडी इज़ वेरी फ़ैमिलियर विथ क्रिएटिव ब्लॉक्स. So that's where like fashion projects come in really handy. For like fresh graduates, junior designers, passion projects are also a great source for like portfolio material. क्योंकि this is something that I've seen in the past couple of years when I've been like reviewing, looking at a lot of profiles, looking at portfolios. People don't have enough. सही है। एक तो whatever you're working on, like structured in your portfolio in a way that it makes sense. Portfolio का एक पैटर्न होता है and now like these things are so easy to find. There's so many portfolios. Look at good portfolios and find your flow. But problem statement, solution. Like you have to identify problem to give them a solution. Design is a solution. It's not art. It's a solution oriented approach. तो ऑलवेज़ डू दैट। बेशक आपकी यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं, आपके पैशन प्रोजेक्ट्स हैं, पुट देम देयर एंड देन प्रेज़ेंट देम इन अ वे कि इफ आई एम लुकिंग एट इट विदाउट एनी कॉन्टेक्स्ट, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट। सो वो चीज़ पैशन प्रोजेक्ट्स आर काइंड ऑफ लाइक गिव वेट टू योर पोर्टफोलियो इन दैट सेंस, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं या फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो यू नो जो चीज़ आपको डिज़ाइन वाइज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, वो आपके क्लाइंट को नहीं पसंद आती, सो द एंड प्रोडक्ट इज़ नॉट टू योर लाइकिंग. You can still add the ones that you like into your portfolio. It's not necessary कि जो approved आपका डिज़ाइन है, आप वही showcase कर रहे हो. You can still let people know that these were your iterations, this is what you worked on, इनकी ideation ये थी, etc. All of those things. So it's really important क्योंकि as a senior when I'm looking at portfolios, it tells me कि एक तो आपकी bandwidth क्या है काम की, सही है कि how much work you have done so far and how creative you are, because with passion projects they kind of like break the mold, so इसलिए they're important. And generally as well, like when you're speaking on like such podcast or you're speaking like in portfolio reviews, so it's really helpful क्योंकि जो है you're not just एक वो learn script होती है ना आपकी, आप उस पे नहीं चल रहे होते. You can kind of like add more to your persona, and that's really important. um वो चीज़ जो है ना, it kind of like builds you as a character in front of your like employer, in front of like these people. It tells them कि how passionate you are about a certain thing if you're investing like extra time in it, which really makes a difference. गुड इनफ। पोर्टफोलियो की बहुत बात हो गई, पोर्टफोलियो के बारे में आपने बताया। सही पोर्टफोलियो की डेफिनेशन क्या है? ठीक है। इन लास्ट 6-7 years आई हैव सीन
मल्टीपल पोर्टफोलियोज। कुछ लोगों को ऐसा लगता है गूगल ड्राइव इज अ पोर्टफोलियो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जस्ट पुटिंग योर 6-7 years ओल्ड वर्क इज पोर्टफोलियो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ बेहानसी पोर्टफोलियो है। व्हाट इज द राइट डेफिनेशन फॉर यू फॉर द पोर्टफोलियो? बिकॉज हमें ऐसा लगता है हम पोर्टफोलियो ऐसे बनाते हैं जैसे हमें दिखाना होता है, हम ये भूल जाते हैं कि हमें ऐसे बनाना चाहिए जैसे लोग देखना चाहते हैं। हमारे हमारे पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होने चाहिए हमारे पोर्टफोलियो के अंदर। दिस इज व्हाट आई गिव एडवाइस टू एवरीवन कि फाइनल आउटपुट शायद लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं करता जितना उसका एक्सपीरियंस करता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपने कोई चीज़ बनाई है, तो अगर आप उसका सिर्फ़ फाइनल आउटपुट डालेंगे, तो शायद आपको ये कहें लोग कि ठीक है यार, अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन लोगों को अच्छा लगता है कि लोग उसकी जर्नी को समझ सकें, केस स्टडीज़ को समझ सकें। आई स्टिल हैव रिमेंबर कि आई वाज़ गोइंग थ्रू अ पोर्टफोलियो विथ समवन इन हू लिव्स इन जापान। उसके पूरे पोर्टफोलियो में, जबकि उस बंदे का एक्सपीरियंस आई थिंक 30-35 ईयर्स का, उसके पूरे पोर्टफोलियो में सिर्फ़ 2 प्रोजेक्ट्स थे। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर वो 2 प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान की आधी इंडस्ट्री से बहुत अच्छे हो गया, क्योंकि उसमें सबसे बेस्ट चीज़ डाली, ठीक है? तो एक तो ये चीज़ है कि हमें पता होनी चाहिए कि पोर्टफोलियो में शोकेस क्या कराना है। मैं देखता हूँ लोग पोर्टफोलियो में 10-10 साल पुराने काम डाल के रखे होते हैं। अनटिल और अनलेस यू आर नॉट ग्रोइंग, आप एक मर्तबा जाके किसी बंदे को पोर्टफोलियो देखने से पहले, भेजने से पहले एक मर्तबा देख तो सकते हैं। सो राइट पोर्टफोलियो क्या होता है, ठीक है? राइट प्लेटफ़ॉर्म्स क्या हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कहता हूँ कि आई एम अ सीनियर रिसोर्स और मैं उसके बाद अपनी गूगल ड्राइव का लिंक भेज रहा हूँ, तो 99% मैं तो उसको सीनियर रिसोर्स नहीं समझने वाला, ठीक है? मैं अगर आप इतने सीनियर हो तो आपको पता होना चाहिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स या इंडस्ट्री प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स कौन से हैं जहाँ पे आपको पोर्टफोलियो मैनेज करना है। And that goes for animation, that goes for video production, that goes for UI UX, that goes for graphic design, ठीक है? एंड व्हाई इट्स पोर्टफोलियो इम्पोर्टेंट? बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है लोग अपनी पूरी पर्सनैलिटी पे मेहनत कर लेते हैं, ठीक है? बहुत अच्छा डिज़ाइन होता है, बट अगर आप डिज़ाइनर हो तो मुझे लगता है शायद आपके फैमिली नेम को जानने से पहले बंदा आपका पोर्टफोलियो देखना चाहेगा। वो आपसे पूछेगा आपका नाम क्या है और अपना पोर्टफोलियो दिखाएँ, ठीक है? रादर देन वो ये पूछेगा आपके बाप का नाम क्या है या आपकी फैमिली नेम क्या है, वो आपका नाम पूछेगा और वो बोलेगा अपना पोर्टफोलियो दिखाएँ। अगर ये इतना इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है? तो क्यों लोग इस पे मेहनत नहीं कर रहे? अपने पूरे एक्सपीरियंस से आपने क्या वर्स्ट देखा, क्या अच्छा देखा और आपको कैसा लगता है कि यार जब आपके पास एक पोर्टफोलियो आता है, आप उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें नोट करते हो, ताकि लोग उस पे काम कर सकें? So, portfolio is the question where, जो अभी हम पहले बात कर रहे थे टूल्स की, that comes in really handy कि there are tools for showcasing your portfolios depending on what kind of like a designer you are. अगर आप मोशन डिज़ाइनर हैं और आप यू नो येस आप टेक्निकली आप वीडियोज़ गूगल ड्राइव पे भेज सकते हैं, बट दैट्स नॉट द राइट फॉर्मेट। इफ यू सेंड इट थ्रू लाइक Vimeo, तो इट वुड लुक अ लॉट मोर प्रोफेशनल, देयर वुड बी अ लॉट मोर टू इट। अगर आप वेबसाइट के थ्रू भेज रहे हैं, देयर इज़ अ डिफरेंट रिएक्शन यू गेट एसेंशियली, सही है? as per the tool you're using. तो एक तो वो चीज़ है एंड देन द सेकंड थिंग इज़ दैट यू आर एबल टू एलैबोरेट ऑन इट कि आपका किस टाइप का प्रोजेक्ट था। अगेन लाइक लेट्स स्टार्ट विद प्रोजेक्ट कि पोर्टफोलियो हम बना क्यों रहे हैं? पोर्टफोलियो हम इसलिए बना रहे हैं टू शोकेस योर क्रिएटिव स्किल एंड आई थिंक लाइक इट रियली डिपेंड्स कि पोर्टफोलियो आप यस आपका 10 साल का भी पोर्टफोलियो हो सकता है, आपका 2 साल का भी पोर्टफोलियो हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन योर नीड अगेन कि आपकी नीड है ये कि आप प्रेज़ेंट किसको कर रहे हैं, उस पे आप पोर्टफोलियो अपडेट करें। सो इफ आई हैव लाइक अ पोर्टफोलियो दैट हैज़ लाइक 10 years old project, so I would probably not put it in front of like a potential employer. तो ये समझना भी ज़रूरी है कि जब आप किसी के आगे पोर्टफोलियो रख रहे हैं, तो आपने उसका कौन-सा वर्ज़न रखना है। लाइक we repeatedly kind of like hear this out कि एक resume बनाएँ and then like create versions of it depending on what job that you apply for. It's similar for portfolios because portfolios are your resume. For creative people, portfolios are your resume. People are at this point like जितना इंडस्ट्री की स्टेट है, they're not interested in कि आपने बैचलर्स कहाँ से किया था, आपने फलानी जगह जॉब की थी। Your work speaks a lot more.
than your resume. So think of portfolio as your resume. तो अगर आप एक potential employee के सामने अपना portfolio रख रहे हैं, so what projects should they have and how should be like you be going about it? That's the important thing. If you if you want to have a space where there's like all of your projects, go ahead and do that. But do you want to share that? ये आप पे डिपेंड करता है. So and how your portfolio should be structured again कि अगर आपके पास एक प्रोजेक्ट है, like you said, the journey really matters. एंड राइट नाउ इट्स नॉट अबाउट जस्ट हम 10 साल पहले पोर्टफोलियोज़ बनाते होते थे कि अच्छा हमने ये लोगो बनाया, इसके ये कलर वेरिएशंस थे एंड दिस इज़ लाइक 2 kind of like mock-ups of that. People are really interested now in knowing कि how did you come up with the entire process? How does the logo expand? Like think in broader terms कि आपका पूरा प्रोजेक्ट एक्सपैंड कैसे कर रहा है एंड इट डज़न्ट मैटर कि उसकी वो रिक्वायरमेंट थी या नहीं थी. Sometimes you have to kind of like amp these up to showcase के आप किस लेवल पे सोच रहे हो. व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ ब्रांड आइडेंटिटी तो आपका आउटपुट बेशक लोगो, लेकिन आप उसको सोच रहे होते हो कि ना हाउ वुड इट कम ऑफ इन सोशल पोस्ट, हाउ वुड इट लुक ऑन एन एडिटोरियल. इस ब्रांड का जब वेबसाइट बनेगी तो उस पे कैसे शोकेस होगा. इफ यू हैव यू आर थिंकिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स, then you're already one step ahead, and then go to a step ahead and actually showcase that in your entire case study. That would really help add a lot of value for your employer. Potential employees who are looking at your project, they'll see कि अच्छा this is like far and wide. And then like other people who are looking at your portfolio just from a learning point of view as well, they'll take away a lot from it. फिर सेकंडली ये है कि अगेन अगर आप किसी पोर्टफोलियो रिव्यू में जा रहे हैं, प्लीज़ डोंट गो देयर बिकॉज़ वी हैव रन इंटू इश्यूज लाइक दिस कि प्लीज़ डोंट गो देयर एंड से कि आई एवरीथिंग ऑफ माइन इज़ अंडर एनडीए एंड आई कांट शो यू. Don't do that. Like if somebody has carved out time for you, like a 45-minute, 30-minute session to show your portfolio, do them the courtesy of showing them something. आप कुछ भी, and this is where passion projects would come in handy as well कि अगर आपने सारा एनडीए टाइप काम किया हुआ है तो you can actually show your passion project क्योंकि आपने कुछ तो दिखाना है ना at this point. Like I आप I हायरिंग नहीं कर सकते. I have a point on that phrase कि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वे टू गेट आउट कि मैं ये कह देता हूँ कि आई एम एनडीए साइन हुआ हुआ है. मुझे ऐसा लगता है पूरे Yeah. डिज़ाइनर्स 99.9% डिज़ाइनर्स इन द वर्ल्ड मेरे ख्याल से एनडीए साइन किया हुआ है. ठीक है? अगर आप इतने ही ऑसम डिज़ाइनर हैं तो आपने कुछ अपने लिए तो करा होगा ना. आप डायरेक्ट ग्रेजुएट होने के बाद काम करना तो शुरू नहीं होंगे. यू शुड मेक समथिंग. आपने कोई ना कोई चीज़ बनाई होगी. एंड देयर इज़ ऑलवेज़ अ वे टू शो. मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, Yeah. आपने किसी पिच डेक पे काम करा और वो बहुत एनडीए साइन हुआ हुआ है, तो वो एनडीए में डिटेल शो करने का साइन हुआ हुआ है. Yeah. आप उसको डिटेल से हटाओ और अपने डिज़ाइन को दिखा दो. अगर आपको लगता है कि यार आपने कोई एनिमेशन बनाई है, उस एनिमेशन के अंदर कोई नंबर्स हैं, आप उस नंबर्स को हाइड करो और एक और रेंडर निकाल लो. ठीक है? मतलब अगर आप किसी के पास जा रहे हो, कोई आपका पोर्टफोलियो देख रहा है, या अगर आप किसी भी ब्रांड को पिच कर रहे हो, या आपका इंटरव्यू है कहीं पे, तो आपके पास इतना तो एथिक्स होने चाहिए. क्यों Yeah, लाइक definitely. मतलब मुझे ऐसा लगता है अब ये एक बहाना हो चुका है कि यार ठीक है मैं ये बोल दूँगा, और उसके बाद उनको टेक होम टेस्ट भी नहीं चाहिए होते. मतलब ठीक है, Yeah. अगर आपकी सारी चीज़ें एनडीए में हुई नहीं है तो एटलीस्ट टेक होम टेस्ट तो आप लेंगे. और मुझे ऐसा लगता है इट्स अ डिबेटेबल थिंग. अगर आपका पोर्टफोलियो बेहतर बना होता है जैसे आपने बोला, तो आई डोंट थिंक सो कंपनीज़ विल टेक टेक होम टेस्ट. उनको अंदाज़ा हो जाता है आपकी बातों से और आपके काम से. द लास्ट पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस इज़ 2 से 3 साल पहले, अगर मैं कोरोना के फेज़ 3-4 साल पहले जब कोरोना चल रहा था, जब एंड पे था, ठीक है? उससे पहले हमारे यहाँ पाकिस्तान में लिंक्डइन एक्सिस्ट नहीं करता था. ठीक है? करता भी था तो बहुत अच्छे लोग ही करते होंगे. डिज़ाइनर्स को तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा था. ठीक है? एज़ बीइंग यूजिंग दिस प्लेटफ़ॉर्म फॉर लास्ट 5 इयर्स, बहुत ही कम था. डिज़ाइनर ज़्यादातर अपना काम बिहान्स वगैरह पे डालते थे. ठीक है? लेकिन उनको ये पता नहीं था कि पोटेंशियल प्लेटफ़ॉर्म है क्या? Hmm. आपको ये बात पत मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद ना आपको ना बिज़नेसमैन होना पड़ता है जब आप डिज़ाइनर होते हैं, क्योंकि आपको ना अपने प्रोज़ एंड कॉन्स सोचने पड़ते हैं कि यार मैं किस मुल्क के अंदर पैसा डालूँगा, किस प्लेटफ़ॉर्म के अंदर पैसा डालूँगा तो कहाँ से मुझे पैसे मिलेंगे? क्या ये सही प्लेटफ़ॉर्म है? क्या मुझे इस तरफ ड्राइव कर लेना चाहिए? वो छोटे-छोटे आप जो डिसीज़न्स लेते हैं.
मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो बिहान पे बहुत टाइम से हैं और उन्होंने बिहान से बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करा है, मतलब वो कम्युनिटी के अंदर हैं और वो उसको जानते हैं अच्छे तरीके से। लिंक्डइन पर हमने ये देखा कि यार 2 से 3 साल पहले लिंक्डइन को कोई नहीं पूछता था, लोगों को ये लगता था कि भाई ठीक है, पाकिस्तान की बात कह रहा हूँ, लोगों को ऐसा लगता था कि अगर आपने बाहर जाना है तो हमें लिंक्डइन की ज़रूरत है, वरना पाकिस्तान में तो चाचा मामा का बेटा कोई ना कोई रेफरल दे देगा और यहाँ से यहाँ कोई ना कोई दोस्त वगैरह बता देगा। देन वी सी इन 2 सालों के अंदर ब्रांड्स coming to LinkedIn, production house coming to LinkedIn. There are multiple events going on. Now, I think the first thing a person will ask in a corporate event or um, in a in a good expo event, उसमें आपके नाम के बाद सबसे पहले आपके लिंक्डइन को सर्च किया जाता है। ठीक है? क्योंकि जब आप प्रोफ़ेशनली किसी से मिल रहे होते हो तो उसको ये नहीं देखना होता कि आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड कौन है और आपका प्राइवेट रिलेशन क्या चल रहा है, उसको ये देखना होता है अच्छा मैं इससे मिला हूँ या मैं इसकी स्पीच सुनने जा रहा हूँ, तो इसने पहले क्या करा हुआ है, इसने क्या-क्या काम करे हुए हैं, किन हुँ। ब्रांड्स के लिए काम करा हुआ है, या अगर मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, लोगों को ये भी होता है ना कि यार वो बोलते हैं हम इवेंट के आगे क्या करें? मैं कहता है यार आपने किसी को देखा, आपको उसका नाम पता है, उसका बैज पहना है, उसका नाम पता है। जस्ट जस्ट डू अ लिंक्डइन सर्च, उसके बारे में मालूम करो ताकि अगर आप उससे बात करने वाले, वो आपसे बात करने वाला आपको पता तो हो कि दिस इज़ द थिंग दैट आई कैन डिस्कस। हो सकता है कि आपको लिंक्डइन पे पता चले कि उसके उसके और आपके बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो मैच होते हैं। मेबी वो किसी पैशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जैसे उर्दू टाइपोग्राफी। You never know, someday you यू आर इन एन इवेंट, आप उमैर नजीब से मिलें और आपको आपके पास एक तो चीज़ होगी ना बात करने के लिए कि आप उमैर को बोलोगे, "हाँ, ठीक है, तुम भी टाइपोग्राफी करते हो, मैं भी करता हूँ।" या कम्युनिकेशन इज़ द मेन की, ठीक है? पीपल पहले डिज़ाइनर्स को ऐसा लगता है डिज़ाइनर्स का मतलब है कि बंद कमरा, अंधेरा है और आप वहीं पे डिज़ाइन करें और क्रिएटिविटी ये चीज़ होती है, नहीं होती क्रिएटिविटी। हम मूवीज़ में देखते हैं भाई डिज़ाइनर्स या कोई आर्टिस्ट या कोई पेंटर है, वो अकेले बैठ के पेंटिंग कर रहा है, ठीक है? बट वो टाइम अलग था। नाउ योर योर वर्क, योर आर्ट नीड्स टू बी शोकेस्ड टू पीपल हू आर हायरिंग पीपल। ठीक है? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि भाई पीपल आर हायरिंग पीपल, ठीक है? सो इट्स डज़न्ट मेक एनी डिफरेंस कि अगर आप सिर्फ़ प्रोजेक्ट मैनेजर्स को हायर कर रहे हैं, क्रिएटिव हेड्स को हायर कर रहे हैं, उनकी कंपनीज़ की हायरिंग भी एचआर देख रहा है, तो उनकी हायरिंग्स एचआर देख रहा है तो उनसे कम्युनिकेट करो, उनको पता होना चाहिए कि आप एग्ज़िस्ट करते हो क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर आपके पास अगर कोई रिसोर्स की ओपनिंग आएगी तो आप जाके लिख भी दोगे, लेकिन ये काम ह्यूमन रिसोर्स का, आप ह्यूमन रिसोर्स को बोलोगे कि भाई मुझे ये बंदा चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, आप मुझे दे दो। ठीक है? या लोगों को यही नहीं पता होता कि हमें रीच आउट कैसे करना है। आपको पता फॉर एग्ज़ाम्पल एक और केस होता है कि लोगों को ये पता नहीं चलता कि उस कंपनी में ओपनिंग है। मैं कहता हूँ उस कंपनी में ओपनिंग है, आपको इसलिए पता नहीं चला ना आप उस लोगों को फ़ॉलो करते हो, ना आप उस कंपनी को फ़ॉलो करते हो। ठीक है? और ऐसा नहीं है ना कि आज आपने फ़ॉलो करा है तो कल उसकी पोस्ट आपको दिखने भी लग जाएगी। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, आपको ये देखना होता है या अपनी प्रोफ़ाइल बिल्ड करने के लिए आप क्या डालते हो क्योंकि लोग वो देखें या ना देखें, आपकी एंगेजमेंट बढ़े या ना बढ़े, लोग देखते सब है मुझे ऐसा लगता है। बेशक वो लाइक करें, रिएक्ट ना करें, कमेंट करें या ना करें, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम पीपल आर अफ्रेड कि व्हाट दे पोस्ट। हम तो कौन मुझे ऐसा लगता है राइट नाउ इन 2025 एवरी पर्सन शुड और नीड्स टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। अपने लिए कंटेंट क्रिएटर बनो, अपना कंटेंट भी तो बेचना है ना आपको। हाउ डू यू सी शिफ्ट फ्रॉम व्हेन यू ग्रेजुएटेड 2020 2025 and LinkedIn? Is it a platform that gives you opportunity or is it a platform just to get more lives or a platform same as different social media? आई थिंक लिंक्डइन स्पेसिफिकली तो नहीं, बट आई डू एग्री विद द फैक्ट कि यू नीड टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड लाइक यू सेड कि आप यू हैव टू पोस्ट योर वर्क, यू हैव टू गेट आउट देयर। इट रियली डिपेंड्स, जिस तरह Instagram is also big, like back in, I remember like during COVID days, early like 2018, 19 as well, like the peak years for like Instagram, because there was a whole Pakistani community, artists, designers, etc., who were there. Like I connected with so many good people who were, like working us time pay. They were putting up their work Instagram pay, and there used to be like just up trend channel उस time पे activities होती थी. People used to like reshare work, and like वो पूरा एक cycle होता था. So it was like a very wholesome community उस time पे. And like I think the bottom line is the same. कि you're putting your work out there because
As designers, we know okay, we all have this goal to build a portfolio website, but we never like get around to it. I personally like haven't had the chance to get around it for years. But the that should not stop you from putting any piece of work that you do over there. अगर आप it's as simple as कि अगर आप Behance पे डाल रहे हो, अगर आप Instagram पे डाल रहे हो, आप उसको एक और प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर दो। बिकॉज़ द एंड गोल इज़ विजिबिलिटी कि आपके काम को विजिबिलिटी मिल रही है, पीपल आउट देयर कैन सी योर वर्क, which is ultimately the goal for you, right? You connect with other people who are either doing similar sort of work, you learn from them, or you connect with like other potential like clients or employers. So that's the purpose of LinkedIn. And the purpose is visibility. You can do it through like multiple platforms, but LinkedIn serves as a professional platform. So if you're doing there, you get like the benefit of coming into the side of like the people who are actually looking for such talent. Perfect. Lastly, I wanted to discuss लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे लोग मुझे भी कहते हैं, आई एम प्रीटी मच श्योर आपको भी कहते होंगे, अगर आपका ऑफिस ये इजाज़त देता है कि आप 3 दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस करें, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम करें, या अगर आप रिमोटली काम कर रहे हैं, या अगर आप क्योंकि सिनेरियोज़ है ना, या तो आप फुल टाइम ऑफिस, या तो फुल टाइम रिमोट, या तो फिर हम जैसे हाइब्रिड मोड पर होते हैं कि 3 दिन ऑफिस, 2 दिन घर, 2 दिन Yeah. ऑफिस, 3 दिन घर। तो जो जो लोग रिमोट पर होते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इनके तो मज़े हैं, ठीक है? जो लोग ऑफिस में होते हैं, लोगों को लगता है कि इसको तो मतलब देयर इज़ प्रोज़ एंड कॉन्स, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है Definitely. क्योंकि क्योंकि मैंने बहुत टाइम तक 5 डेज़ ऑफिस वाली लाइफ़ गुज़ारी। बेशक वो एजेंसी थी, बेशक वो एमएनसी थी, लेकिन फिर आपको एक डिसिप्लिन की आदत हो जाती है, ठीक है, मुझे इस टाइम पे उठना है और इस टाइम पे जाना है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि भाई मुझे हल्की-सी ढील मिलती है, मैं ढीला हो जाता हूँ। मुझे जिस दिन वर्क फ्रॉम ऑफिस है, मैं उस दिन मैं 7 बजे नहीं उठूँगा, मैं उस दिन 9 बजे ही उठूँगा, मैं 5 मिनट में रेडी होके बैठ जाऊँगा, ठीक है? व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ अ माइंडसेट इन डिफरेंट वर्क एनवायरनमेंट? क्योंकि रिमोटली अगर आप काम कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये बात समझनी होती है कि आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है, ठीक है? पीपल यूजुअली डोंट डू दैट, एंड देन इफ दे आर नॉट डूइंग दैट, उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी प्रोफेशनल लाइफ मैच हो जाती है। जैसा आपने थोड़ा टाइम पहले कहा था स्टार्टिंग में कि भाई अपनी ज़िंदगी गुज़ारो, मतलब काम इट्स गुड, यू आर वर्किंग इट्स गुड, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि देयर इज़ अ पर्सनल लाइफ ऑल्सो। एक वक़्त है जहाँ पे आपका काम खत्म होगा, आपको अपनी पर्सनल लाइफ करनी है। कोरोना में पाकिस्तान के अंदर पहले हम लहर में चल रहे हैं, तो हमने पहले सबसे पहले ये सीखा कि वर्क फ्रॉम होम बहुत बुरा है, तो इसको एक्सेप्ट करने में हमें कोरोना का पहला फेज़ लग गया है कि भाई नहीं यार, ऑफ़िस जाके काम करने का मज़ा होता था, वर्क फ्रॉम होम में तो कोई मज़ा ही नहीं था। तो 6 महीने हमने ये सुना, 6-7 महीने बाद हमें वो चीज़ अच्छी लगने लग गई और हमने फिर ये सुना कि यार वर्क फ्रॉम होम ही होना चाहिए। और इन दैट केस अभी भी बहुत सारी कंपनीज़ में लोग हैं, उन वो मेंटली तौर पे अपनी रिमोट जॉब से बाहर नहीं आ पाए, ठीक है? और वो ये समझ नहीं पाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्क फ्रॉम ऑफिस, वर्क फ्रॉम होम और हाइब्रिड, एंड व्हाट आर द राइट माइंडसेट इफ यू आर इन एनी ऑफ दीज़? So for me personally, pre-COVID, I was working full time, and then post-COVID, say I have been remote. So I've been remote since like 2020. Um, I think like in either case, hybrid, remote, or in-house, aap jo wo discipline is really important. So I've seen this where when I was like at KT when we used to work like in-house, hum log jaate hote the. Even then, like I had set my timings, right? So I used to go to the office at 8. 4 was my checkout time. 4 baje I was out of my seat. I used to go home. Us time pe like we had like these set hours which we used to follow. I think like एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि आपके मैनेजमेंट से जो एक्सपेक्टेशन सेट होती है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ द फर्स्ट वीक आवर लीड टोल्ड अस कि 9 टू 5 हम लोगों का टाइम है, 5 बजे उठ जाओ, सही है? सो शी ऑलरेडी लाइक taught us the value of respecting our own time. Okay, like 5 baje we should be up and out of the office. We have our own time. So that and like eventually like I fell into the pattern of 8 to 4 so that like when I went home, I had all of that time to myself. Even like during COVID, obviously like there was this phase of adjustment between like were complete like shifting completely to remote.
तो उसमें भी like early in COVID for myself, I maintained my time. Like I used to check in at 8, 4 baje I used to wind it up. So for me, like discipline in my life is really important. I'm really like a creature of routine. So I have like defined that for myself from the very beginning. To date, I know that I will like open my laptop at 9. I will finish up at 4. And then because we are working in a US based setting, so I have to check in later at night. But for me, that beach gap is also very important. So even at Fun Matter, we have like communicated it to our designers. Any communication that needs to be done with the CDs, it needs to happen between 10 to 4 because the CDs have to check in later at night. So they will kind of like block off those hours. And you can do it in many ways. आप अपना calendar block off करो, आप expectation set करो अपनी team के साथ. Discipline in any case is really important for like optimal work. That's how I feel. And just give it some time. I think like just routine wise, whether you are going into the office, whether you are doing remote, setting like a pace of time, aadha ghanta, 40 minutes before like, your meeting starts and you go into it just to prep yourself for the day. You're checking in on emails, you're doing like your to-do list so that you're prepared for the day. हमारे साथ ये होता है कि we are like the middle person, so we have to communicate with clients, we have to communicate with designers as well. We don't want to be blockers for either of these parties, right? So I make sure that like 1 hour before my meeting starts, I'm getting all of my check-ins, I'm making my to-dos, okay, I'm prepared for the day onwards for with my designers as well. That gives me a sense of discipline apart from like setting my timelines as well. Or when I'm like shutting down at 4, I know कि जब अगर मैंने रात को pick up करना है, मैंने अगले दिन pick up करना है, so how much I'm leaving over. So it just gives me a very good sense of work. And I think like it makes me value the work as well and it makes me value my family time as well. Okay. Again, like drawing clear boundaries so that, like I'm not stretched in all of different directions. क्योंकि मुझे लगता है that also increases your like, general anxiety, your like uh like negative feelings towards work, which is eliminate with the authority. If you're like setting boundaries, you know where to like step away, where you need to take time. And remote may it's like harder to set those boundaries because I know like when you're working in house, so you're working as a team. Sub collectively lunch ke liye ja rahe hain, there's a lunch hour. Everybody is kind of like signing off at like 5:36. So वो एक collective सी चीज होती है, it's a communal thing. With work from home, with remote, you have to like make sure you stick by what you're setting standards for yourself. But it takes time, but if you do that, I think it really helps kind of like get the hang of things really well. I think we have discussed very good topics. And Momina, thank you so much for taking out your time. I was very much excited when we are having your session क्योंकि मुझे पता था कि यार यू नीड टू हैव द सेम माइंडसेट अगर आपको किसी से वो चीज़ें पूछनी है। तो मेरे वो जो सवालात थे कि यार डिज़ाइन की रियलिटी तो पूछ लें कि है कैसी? क्योंकि हर किसी को लगता है कि ये बड़ी अच्छी फ़ील्ड है। हर किसी को लग रहा है कि Yeah. यार फ्रीलांस कर दो और मैं दुबई में हूँ तो मुझ लोगों को ऐसा लगता है कि सेब के बाद से दूसरा मैं ही हूँ और मैं यहाँ पे साँस लेता हूँ तो धर्म गिरते हैं। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि जब आप रिमोटली काम करते हैं किसी भी कंपनी के लिए तो भी लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि भाई करना ही क्या है, बैठना तो है, ठीक है। बट देन यू नीड टू कम अप विद अ प्रॉपर आइडिएशन, प्रॉपर प्लान कि आपको आपको बेसिकली मुझे ऐसा लगता है हर पॉइंट पे अपनी वर्थ को सेट करना पड़ता है कि दिस इज़ माय बाउंड्रीज़ और Yeah. अगर आप वो पहले से खराब रखोगे तो वो बाद में ही मसला करेंगे। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ऑन वेरी गुड पॉइंटर्स। आई एम प्रीटी मच श्योर पीपल विल लर्न टू लिसन ऑल दीज़ एंड इफ दे हैव एनीथिंग टू आस्क दे कैन रीच आउट टू यू। बट जस्ट फॉर द ऑडियंस डोंट रीच आउट हाय हेलो के मैसेजेस से। जो सवाल हो वो पूरा लिखिएगा तो आई एम प्रीटी मच श्योर मोमिना विल रिप्लाई। उन्होंने मुझे रिप्लाई करा है तो वो हर किसी को रिप्लाई करेंगी। प्लीज़ आप हाय हेलो के मैसेजेस ना लिखें। But it's my pleasure to have you on the session. Thank you so much for your time, and hopefully people will learn from this session. Absolutely. Thank you so much for having me. I had a really good time just answering all these questions. I think it's really important because I work remotely again, so it's very it just there's so much value in connecting with like-minded people, just like offline, online, and I feel like it just increases my own creativity. It helps me like connect with more people. Gives me generally a lot of confidence to put my thoughts out into the world as well.